So great. I use in PR and Is it find out? Junior issue. Sir. In column. Yeah, ఎక్కువ. You connect it. आप कनेक्ट कर लो. इसको व्यू में जाओ ना. ये पॉपअप हो नहीं पॉपअप. शेयर फिल्टर स्क्रीन. ये ऑलरेडी इसने शेयर किया. You had shared your screen. अब पॉपअप हो गया. स्क्रीन इसका. नहीं इस पे शेयर किया है क्या टीम्स पे? हाँ टीम्स में शेयर किया. इसको बड़ा करो. आपसे ही दिखेगा ना. आपने शेयर किया. कनेक्टेड नहीं है फिर भी. ठीक है शेयर ना. इसको मैक्सिमाइज. Let's start. So good afternoon, everyone. So today's session is improving productivity using AI. So this is the second session of ChatGPT. So before 15 days, we had the first session. So let's recall what we had in that session, what we had discussed, so that there are many new faces and they'll be able to connect the thing for today's presentation. So can anyone recall what was there in last session? How to upload files, how to write mail वगैरह मैं बताया. Okay, but to be specific to ChatGPT, what we had discussed in it. Can you recall, Srushti, anything? There are 3 modes in ChatGPT: thinker, then basically Yes, correct. So, right, I'm right. So, what we had discussed on ChatGPT, its birth, when was it? Birth in 2022. There were 5 GPT types from GPT-1 to GPT-5, how it evolved and what were the differences in it.
then what is the today's capability of ChatGPT, what it can do today. And there were 8 to 9 use cases. And then we discussed about the prompt. So what is the prompt we can give to the ChatGPT or any AI that it will yield the result as we want it. So as sir emphasized RTC. So R stands for role, T for task, and C for context. So whenever we give prompt to that AI, we should remember these 3 things and we should cut it into 3 segments. Then what is the role? For example, if we are telling that act as an operational manager, or we can say act as a transport head or a VP. So it will give the result regarding to it. So these were the things we discussed in last session. So today there will be we will discuss on features. So what are the features in ChatGPT? As everyone has, I hope, used ChatGPT, Yes. right? Yes. But there are many features which we have ignored in it. So there are multiple features which we can use and enhance our productivity. So let's go through it. So this is the first one. First one is the project. Yeah. Yes, sir. Yeah, you can put it. Oh, yes, the first feature is which we ignore multiple times. We just know the chat section where we type a prompt in ChatGPT and yield the results. But there are multiple features which I'll also show in practical. So project is a feature where we can create a project of a particular name or activity we want to create. अगर हमको कुछ एक चीज एक टॉपिक के बारे में अगर कुछ सर्च करना है तो प्रोजेक्ट में हम लोग उसका नाम देके एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं ताकि वो जो फाइल्स है या फिर जो भी उसका इंफॉर्मेशन है तो दैट इज ऑल ऑर्गेनाइज्ड एट वन प्लेस. तो उसी के रिगार्डिंग में हम यूज करके फिर उसको आगे जितना इजीली ऑर्गेनाइज्ड रहेगा उतना हम इजीली उसको यूज कर सकते हैं. तो इसमें यूज केस दिया है कि हेल्थ एंड सेफ्टी साइड ऑडिट मैनेजमेंट. तो एक प्रोजेक्ट इसके नाम का क्रिएट करके वी कैन ऐड चेकलिस्ट एसओपीज और जो भी बाकी की चीजें रहेंगी तो वी कैन ऐड ऑल द थिंग्स एट वन प्लेस. तो लेट्स सी प्रैक्टिकल. So this is the where project is given. Often we ignore these sections and we just use the chat section. So after clicking the project, we can create the new project here. I have an existing one. Which kind of projects you can pick? No project in the sense we can create. What are we creating? One we should give that topic as a project. म्हणजे आता तुमच्या याच्या डिपार्टमेंट मध्ये तुम्ही जर काही क्रिएट करत असाल तर प्रोजेक्टचं नाव तुम्ही ते देऊ शकता. मग प्रोजेक्ट मध्ये त्याच्या रिलेटेड जेवढं पण सर्च केलेलं असेल ते सगळं एकाच ठिकाणी ऑर्गनाइज असणार आहे असं. So you want to do upon a Skoda. You want to do all the related Skoda documents at one project folder where Skoda agreement, you can place Skoda manpower related to Skoda, everything you can place it in Skoda folder. Yeah, one kind of folder where every time you no need to give again and again the update or the contents. एक बार project में files करके अलग सा होगा created by you, shared with you. So ये जो है if you just upload once, those all will be again reiterated and think by the brain of the AI. ठीक है? Like in the screen if you see here, when we click upon the project, so Vallabh had used only one project on ChatGPT presentation. So what he had done, so in that one he had done these many chats, right? And these are the sources he has not uploaded any sources. Yes. So any sources you upload, they will be saved here itself. So आपको दोबारा source को upload करने की जरूरत नहीं है. आपको re-upload मतलब source का again refresh करना है, कुछ update हो गया source में, like for example agreement में कुछ additional features आ गया, additional scope हो गया. So again we can upload the source and delete the old one as well, right? So now over to you. Yes. So this is where we can utilize project as sir has discussed and explained it. तो एक जगह पे ऑर्गेनाइज रहेगा तो हमको वो चीज बेनिफिशियल रह सकती है क्योंकि हमारे पास इतने सारे टॉपिक्स है कि किस चीज पे हम कभी काम करने जाएंगे तो उसमें टाइम वेस्ट होता है.
कि ये फाइल कहाँ पर है, ये फाइल कहाँ पर है। तो अगर हम एक ही चीज जगह पे रख देंगे तो हमको वही चीज आगे फिर वो यूज करने के लिए और उस पर इम्प्लीमेंटेशन के लिए वो चीज इजी हो जाती है फिर। जनरली सब लोग क्या करते हैं, चार्ट ओपन करते हैं। सो हर बार चार्ट में नया चीज करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे। सो अभी चार्ट में वो भी कर सकते हैं, बट व्हाट हैपेंस, फॉर एग्जांपल इन वल्लभ केस इटसेल्फ वी सी हियर देयर आर सो मेनी चार्ट्स इन डिफरेंट डिफरेंट। अभी तो ये अभी चालू किया 30 days से, दैट्स व्हाई ही इज हैविंग लेस चार्ट्स. So you people are using the chat GPT for the last 6 months. You will be having n number of charts, hundreds, 200s, 300s. उसमें से आप कब क्या किया आपको पकड़ना ये मुश्किल हो जाएगा। और दोबारा नया चार्ट देते वक्त अगेन यू हैव टू अपलोड द सोर्स। हर बार आपको नया सोर्स अपलोड करना पड़ेगा। सो कभी कभी सोर्स ही मिस हो जाएगा हमारे पास, अरे यार मेरे फोल्डर में मेरे कंप्यूटर में किधर सोर्स किधर था किधर था करके। सो व्हाट हैपेंस हियर इज वेरी सिंपल, इफ यू गो टू द प्रोजेक्ट अगेन दैट एवरीथिंग विल बी कनेक्टेड ओवर द रिसेंट चैट्स में दिखता रहेगा। लेकिन प्रोजेक्ट्स में बेनिफिट ये कि वी कैन club all the related charts into one place. We can see all the related charts into one place. That's the benefit of these projects. And in projects also, bada like project word itself is clearly defines. You can use n number of data, n number of whatever charts. Other features will be there, and in advance we can discuss. You are utilizing the screen. This one. Present screen कौन सा है आपका? निकाल लिया आपने। So निकालो तो Alt tab use करो। Okay? You use Alt tab. Show the chat GPT. ये है ना chat GPT? Yes. ये नहीं है। This is your chat GPT. This is your presentation. Alt tab. ठीक है? चलो। Oh, moving to the next feature. So just again, people had joined back. Just I will give an again brief how we are driving this AI sessions. So in the first session, till now we had 3 sessions happened. 3 topics happened in 2 sessions. First session we had taken upon Notebook LM, the first basic one. It will be in the YouTube link. It will already shared in the mails. Okay, you can go through that one. The second session we have taken 2 topics. One is ChatGPT basic, and the third one is Notebook next level, second level. Okay, so first level में क्या बताते हैं, उसका बेनिफिट क्या है, कब स्टार्ट हुआ, अभी एग्जिस्टिंग क्या है, उसका बेनिफिट्स क्या है, इतना तक बताते हैं। ठीक है। सेकेंड लेवल में कोई भी अगर स्क्रीन ओपन कर रहा है, उस स्क्रीन में क्या क्या फीचर्स अवेलेबल है, वो सारे फीचर्स के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं सेकेंड लेवल में। थर्ड लेवल में we will be utilizing which is not visible to us on the screen. UI यूजर इंटरफेस में जो नहीं दिखता है वो सारे चीज थर्ड लेवल में हम लोग करते हैं। तो अभी टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द ChatGPT सेकेंड लेवल एंड क्लाउड फर्स्ट लेवल। ठीक है, ये दोनों टॉपिक आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू दैट ही इज गोइंग टू द नेक्स्ट फीचर, द सेकंड फीचर कोडेक्स। तो कोडेक्स का नेम इटसेल्फ सजेस्ट कि ये कोड के रिगार्डिंग कुछ है। तो डिस्पाइट फ्रॉम बीइंग द कंप्यूटर बैकग्राउंड, मैं जब भी कोड का नाम सुनता था तो डर लगता था एक लिमिट तक कि बाबा कोडिंग हम कैसे कर सकते हैं। तो आप तो जब दूसरे बैकग्राउंड से हो तो हर किसी को डर लगना वो तो बात साजिश है, पर हम कोडेक्स जो यूज कर सकते हैं इसमें फीचर, तो हम प्रॉम्प्ट डाल के उसमें बस प्रॉम्प्ट डालने का काम हमें करना है और चैट जीपीटी हमें खुद से वो चीज पे पूरा वो प्रोजेक्ट बना के हमको वो दे देता है। तो कोडिंग इज नो मोर अ डिफिकल्ट थिंग, बस हमको फॉर्मेट पता होना चाहिए और क्या चीज हमें चाहिए। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि हम प्रॉम्प्ट में जो डालेंगे उसी तरीके से वो हमको कोड क्रिएट करके दे देगा। अभी इन दिस यूज केस इट हैज गिवन अबाउट अ क्यूआर अटेंडेंस सिस्टम। सो हम कैसे कोडेक्स में प्रॉम्प्ट डाल के एक क्यूआर साइट पे अटेंडेंस सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं, मूविंग फ्रॉम मैनुअल टू ऑटोमेटिक, बिकॉज मैनुअल प्रोसेस में बहुत टाइम जाता है। So today also we are practicing at many sites this manual process. So we are trying to shift to the automatic. So we are at the beginning level. So let's see. तो मैंने एक प्रॉम्प्ट दिया था वहां पे उसको, जो हमारा यूज केस था उसमें, तो इट जस्ट टुक मी 30 seconds टू गिव अ प्रॉम्प्ट, बट उसके ऊपर उसने ये हमको एक अटेंडेंस का एक एग्जाम्पल का सिस्टम उसने क्रिएट करके दिया। ड्यू टू सम सेफ्टी रीजन यहाँ पे क्यूआर कोड फिलहाल तो नहीं है उसमें, बट
जैसे हम लोग आगे आगे इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसमें वो चीज दिख जाएगी। तो फिलहाल उसने कुछ चीजें क्रिएट की है, जैसे एम्प्लॉय नेम है, एम्प्लॉय कोड है, तो उसने वो खुद से जनरेट किया है, क्योंकि आई डिड नॉट मेंशन एनीथिंग स्पेसिफिक इन द प्रॉम्प्ट। सो उसने खुद से जनरेट करके ये हमको दिया है, तो इट जस्ट टुक मी 30 सेकेंड्स। तो ये जो हम सेव अटेंडेंस अगर एग्जांपल यहाँ पे करेंगे तो उसका नाम हमें यहाँ पे दिख जाता है। तो प्रॉम्प्ट में हमारा क्या था कि जब हम अटेंडेंस देते हैं और वो जब जीपीएस लोकेशन फेल हो जाता है, तो वो उसका अलर्ट जाना चाहिए व्हाट्सएप पे या मेल पे। तो जिसको मैप किया है तो वो उसको डायरेक्टली उसमें चला जाएगा। तो ये था, ये बड़ा प्रोजेक्ट है, बट 30 सेकेंड्स में अगर ये इतना दे सकता है, तो फिर अगर हम सोच के काम करेंगे तो फिर वो और भी अच्छी तरीके से हमको वो प्रोजेक्ट दे सकता है। तो इसमें एडमिन बोर्ड भी अलग से है, तो जहाँ पे डायरेक्टली टोटल प्रेजेंट अलर्ट जीपीएस पे अलर्ट सेंड एक डैशबोर्ड टाइप है कि हमको डायरेक्टली एडमिन को डायरेक्ट दिख जाता है कि कौन प्रेजेंट है, कितने प्रेजेंट है, कितना फेल हुआ है। तो हमको वो चीज वापस देखने की जरूरत ही नहीं है उसमें। दिस इज रिगार्डिंग द एम्प्लॉइज कि टावर ए लॉबी, उनका लोकेशन जो है वो यहाँ पे ऐसे हर एक एम्प्लॉय को उन्होंने डिटेल में दिया है, और लास्ट में एक रिपोर्ट वो खुद से क्रिएट करेगा उसमें कि व्हाट्सएप पे जिसका नंबर मैप है उसको वो मैसेज डायरेक्टली पहुंचा है कि ड्यू टू द जीपीएस फेल ये मैसेज आपको पहुंचा है, जिसका मैप रहेगा वो उसी को पहुंचेगा। तो वही मैं बताना चाहता हूँ कि इसकी पावर जो है कि अगर 30 सेकेंड के प्रॉम्प्ट से इतना क्रिएट कर सकते हैं, तो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में हम लोग इम्प्लीमेंटेशन जरूर कर सकते हैं इन ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट। So whatever the example he had shown here related to the site utilization, हमारा जो कंपनी का बेनिफिट के लिए इसने यूटिलाइज किया, तो अकॉर्डिंग टू योर डिपार्टमेंट यू कैन यूटिलाइज दिस कोडेक्स। सो कोडेक्स में क्या है कि कोई ऐसा डरने के लिए नहीं है, कोडेक्स इज नथिंग बट ChatGPT will be doing the code requirements in it, but we have to give only natural language, नेचुरल लैंग्वेज का ही हमें देना है। ऐसा कोई स्पेशल चीज कुछ नहीं लिखना है, जो आप नॉर्मल हम लोग जो बात कर रहे हैं ना वैसा ही है। मुझे ये चैलेंज है, आपका ये रोल है, ओके, ये हमारा कंटेक्स्ट ये है, आउटपुट ये चाहिए, बस ऐसा डालने से वो खुद ही बनाए। सो इफ यू सी द यूज केस में जो एप्लीकेशन दिया है, जो प्रॉम्प्ट दिया है, उसी प्रॉम्प्ट को उसने डाला है ऑन द whatever the prompt over on the screen आ रहा है buffering है, so whatever prompt on the screen, yeah, so यही prompt उसने डाला है, got it, and ChatGPT had prepared that whatever the application, तो वो application बना दिया है। So when we are learning the things in Codex into the next level, fourth level में हम लोग automation के लिए प्लान करेंगे। उस टाइम में you people all after benefiting of the 3 sessions, you all people has to come up with your whatever the automation requirements. Sir, मेरा एरिया में ऐसा है, I want to do this. So you do on your own whatever the queries you're coming up, so that we can support over there. समझ गया? So upon that we can do our whatever the petty tasks which is repeated, आपका continuously repetition हो रहा है, वो सारी चीज हम लोग automation में ला सकते हैं। ठीक है, ऑटोमेटिक जल्दी काम होने के लिए। तो दिखा दो कोडेक्स का एक मिनट। हाँ, नहीं क्लोज नहीं हुआ है, ओपन था, ChatGPT में था 127 ऐसा कुछ नहीं। So as we can see, this is the codex. So I have given this prompt as given in the use case in presentation. बस इतना ही मैंने दिया 30 सेकेंड्स के लिए। उसके बाद में मैं ये देख भी नहीं रहा था, आई वॉज डूइंग अदर वर्क। तो ये एक पेट है एक्चुअली में, तो इसको मैंने रखा था अगर ये कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाता है या फिर कंप्लीट हो जाता है तो ये नोटिफिकेशन दे रहा था।
तो इट सेव्स टाइम कि जस्ट इतने टाइम में ये अपना काम खुद कर रहा है। अगर कहीं पे इश्यू आ रहा है तो नोटिफिकेशन आ रहा है तो मैं चेक कर रहा हूँ, उसे क्लिक कर रहा हूँ और मैं वापस दूसरा काम कर रहा हूँ, यहाँ पे साइमल्टेनियसली वो खुद का काम अपना करते जा रहा है। तो दिस इज ऑल डन ऑन इट्स ओन। ये सब जो फाइल्स है ये उसने खुद से बनाई है। तो यू ऑल कैन HTTP now. यस सर। Click on the HTTP. Earlier, what you had shown on the screen is this HTTP. Is this the application, right? HTTP मतलब ये बस मुझे दिखेगा कि ये जो आईपी एड्रेस है ये लोकल होस्ट का है, मतलब बस जो मेरा डिवाइस है ये उसी पे से एक्सेस होगा कि ड्यू टू सेफ्टी रीजंस। आपको उसको our open public में चाहिए ना, then Hira rules comes in. So you guys has to approach to Hira so that she can tag that into our website or kind of a web domains. ठीक है? चलो. मूविंग नेक्स्ट टू द इमेजेस सेक्शन। तो ये भी एक ऐसा फीचर है कि इफ वी सेलेक्ट द इमेजेस ऑप्शन इन चैटजीपीटी, तो जो भी हमारा टेक्स्ट रहेगा या जो भी सोर्स रहेगा तो वो उस सोर्स में से हमको एक इमेज क्रिएट करके दे सकता है। सो बी इट पोस्टर, बी इट इंफोग्राफिक, बी इट एनीथिंग। तो बस टेक्स्ट, ऑडियो या वीडियो हम जो भी सोर्स अटैच करेंगे और जो प्रॉम्प्ट उसे देंगे तो उसके बेसिस पे वो एक इमेज क्रिएट करेगा। सो आई हैव क्रिएटेड इमेज ऑन द बेसिस ऑफ दिस। तो यहाँ पे एक यूज केस है कि कैंटीन हाइजीन, और उसके कुछ तरीके दिखाने के लिए हम पोस्टर्स यूज कैसे कर सकते हैं। हम हर चीज तो किसी को बता के तो नहीं कर सकते, और जितना विजुअल रहेगा तो जो देखने वाला है उसको वो चीज उतनी इजी होती है कि बाबा ठीक है ये प्रोसेस है, और देखने में वो चीजें समझ आ जाती है। So using the same prompt, what has been the output? So यहाँ पे safety का हम इसलिए दिखा रहे हैं, we are just mixing up all the requirements, but you can do for your own function. For example, HR को करना है, तो HR का demonstration कुछ करना है, you can just give the demonstration of the HR so that it will give an image. समझ गया? किसी नया आ रहा है, उनको समझाना है, तो image gives more understanding rather than verbal, right? Sure. तो इसमें अलग अलग एस्पेक्ट रेशियोज भी हम लोग उसे लैंडस्केप में भी कर सकते हैं और पोर्ट्रेट में भी कर सकते हैं। अगर हमको कोई चीज अगर कहीं डिस्ट्रीब्यूट करनी है, अटैच करनी है या किसी को सेंड करनी है तो वो रिक्वायरमेंट क्या है, तो उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से वी कैन ऑल्सो क्रिएट एंड एडिट इट। अगर इस पे हम लोग प्लेन अगर जस्ट क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन जो ये एडिट का है, डिस्क्राइब एडिट्स, तो इसमें हम क्या एडिट्स चाहते हैं दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि हमें जैसे चाहिए अगर वैसे नहीं मिला तो हमको एडिट करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे एडिट के लिए उन्होंने ऑप्शन दिया है, तो वी कैन एडिट इट, वो वापस से दूसरा इमेज रिक्रिएट करेगा और हमको वो चीज इमेज हमको वापस मिलेगा। तो दिस इज ऑल्सो वन इम्पोर्टेंट फीचर जो हम सब यूज कर सकते हैं इमेजेस सेक्शन में। So where is images? Images tab. यस राइट श्योर। टैब किधर है? इमेजेस दिखाने। तो हम जब भी प्रॉम्प्ट टाइप करते हैं यहाँ पे तो यहाँ पे क्रिएट इमेज का ऑप्शन आता है। तो व्हेन वी क्लिक ऑन क्रिएट इमेज तो वो स्पेसिफिक उस तरीके से वो इम्प्लीमेंट करेगा और वो इमेज क्रिएट करके हमको दे देगा। अगर हम नहीं करेंगे तो वो हमको बस एक टेक्स्ट प्रोवाइड करेगा जो कि हमारे कोई काम का है नहीं। तो इफ वी वांट इमेज एंड इफ वी सेलेक्ट इमेज, इट स्पेसिफिकली फोकसेस ऑन द इमेज क्रिएशन। सो हम जब कुछ चीज सेलेक्ट करते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है और उसके ऊपर हमारा रिजल्ट जो है वो भी इंपॉर्टेंट होगा। गुड। So moving next to deep research. तो डीप रिसर्च एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट कि कुछ डीप रिसर्च हो रहा है, मतलब एक जो हम टॉपिक चाह रहे हैं उस पे वो गहराई में जाके सोच रहा है कुछ ना कुछ और हमको वो चीज प्रोवाइड कर रहा है। अगर हम नॉर्मल टेक्स्ट में दिखाए तो ऑप्शन, अगर नॉर्मल में जाके बस हम लोग क्लिक करेंगे तो वो एकदम नॉर्मल सा जनरलाइज हमको आंसर प्रोवाइड करेगा। बट हमको कुछ अगर कोई डिसीजन लेना है या कुछ इंप्लीमेंटेशन करना है तो वी वांट ऑल द एस्पेक्ट्स, इट शुड बी कवर्ड होलिस्टिकली, मतलब उसके सब एस्पेक्ट्स उसमें होने चाहिए। तो वी विल सेलेक्ट द डीप रिसर्च ऑप्शन इन इट। ये दिख रहा है यहाँ पे ऑप्शन डीप रिसर्च का। तो इफ वी क्लिक
तो दिस चेंजेस टू डीप रिसर्च। यहाँ पे और भी ऑप्शंस आते हैं। वी कैन आइदर कनेक्ट एप्स इन इट, या फिर हमको अगर कोई साइट चाहिए तो वी कैन ऑल्सो ऐड साइट्स टू इट। तो हम अगर जो सोर्स दे रहे हैं वो सोर्स में से वो डीप रिसर्च करके एक्सट्रैक्ट करेगा और फिर हमको वो चीज वो प्रोवाइड करेगा। तो एक एग्जांपल आई विल शो यू ऑन दिस। This is the same prompt which is given in the slide. So I have just given the prompt to it. It is regarding the facility management technologies वगैरह और भी जो मार्केट में चल रहा है, अगर उसकी रिगार्डिंग कुछ चाहिए तो वहां पे उसने दिया भी है कि रिसर्च कंप्लीटेड इन 8 मिनट्स। जनरली हमको 30 सेकंड या 1 मिनट में आंसर मिल जाता है, बट दैट इज वेरी जनरलाइज्ड। अगर हमको डीप रिसर्च कुछ एनालाइज करना है तो वी शुड यूज दिस फीचर। So how many citations it has utilized? Web से होने दो, web से भी होने दो. It has researched 53 citations. मतलब 53 citations अगर हमें देख के हमें conclude करना है, so how much time it will take? So this is especially for the middle and upper levels. So we people has to come up with the conclusion summaries upon doing all the research, right? तो आप लोगों को जो लोअर लेवल है, आप लोगों को अपर लेवल होना है, तो आजकल एआई है, सब कुछ एकदम फास्टली सब कुछ सीखना पड़ेगा। सो अकॉर्डिंगली यूटिलाइज द ऑटोमेशन और एआई फीचर्स। ठीक है, चलो। सो वी कैन सी यहाँ पे बहुत सारे टेक्नोलॉजी इसने डाल दिया है। इफ यू सी दिस डिजिटल ट्विन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यू विल बी डूइंग इन द नेक्स्ट ईयर। Digital twin technology will be implementing it supreme in next year. So digital twin is a very highly advanced technology and तो उसके लिए आपको capabilities भी चाहिए। मतलब जो हम लोग अभी scratch में है, so we should understand the next level, then only we can do the digital twin technology. Go ahead. yes. तो उसने डीप रिसर्च करके इतना बेनिफिट्स वगैरह जो भी अलग अलग एस्पेक्ट्स होते हैं तो उसने सब हमको यहाँ पे प्रोवाइड किया है, तो हम लोग उसको एनालाइज कर सकते हैं। अगर ये किसी को नहीं इतना पढ़ना है तो भी जो सर ने पढ़ा है नोटबुक एलएम टूल, तो वी कैन ऐड दिस सोर्स इन इट, वी कैन कन्वर्ट इट टू ऑडियो और वीडियो। तो अगर कोई इतना पढ़ना नहीं चाहता है तो हम लोग गाड़ी चलाते चलाते उसे सुन भी सकते हैं, या वीडियो का फ्री रहेंगे तो देख भी सकते हैं, क्योंकि पढ़ने में सबको बोर हो सकता है लेकिन वीडियो देखने में तो इंटरेस्ट आ सकता है। तो वी कैन इंटीग्रेट दिस टूल्स इन सच अ वे और उसमें से हम लोग आउटकम निकाल सकते हैं। So till now we had seen how many four features we had seen: deep research, images, codex, another one is project. So चार हमने देखा है. So go ahead. So next feature is apps. So this feature means in ChatGPT, if we click on app, it provides few application options in it. And if we click, अगर हम उस पर क्लिक करते हैं तो it connects to the ChatGPT. तो हम अगर प्रॉम्प्ट देखें और उसे वो एप्लीकेशन यूज करेंगे, तो मैंने एग्जांपल यूज किया इसमें कैनवा का। तो आई हैव कनेक्टेड द कैनवा, और कैनवा में से कैनवा इज एवरीवन नोस इट इज फॉर डिजाइन एंड अदर थिंग्स। तो एक तो रेज्यूमे हो या डैशबोर्ड वगैरह टाइप अगर कुछ भी छोटी चीज हो तो वी कैन यूज इन इट, और उसको हमने कनेक्ट करके कैसे आउटपुट ये किया है आई विल शो टू यू। So for HR, what I can say is आप लोगों का अगर CV resume फिल्टर करना है तो आपका JD का बराबर लेना है, तो नौकरी से आपको लगभग 20 या 30 या 40 CV मिल गया। तो आप लोग जो है ऐप भी बना सकते हो या कोडेक्स में भी लिख सकते हो। Upon these resources you can just filter it out who are the best fit. So these kind of ये यहाँ पे क्या है कि it's totally innovative thoughts how you guys will be utilizing. Okay, so first of all, there is a apps option here on the left side. If we click on the apps, then this segment opens where they have given in three parts: featured, lifestyle and productivity. तो वो ऐप जिस कैटेगरी के अंदर आते हैं उन्होंने वहां पे मेंशन किया है। तो आई हैव कनेक्टेड कैनवा, वी कैन सी हियर दैट दे हैव गिवन अ टिक। तो हम लोग ज्यादा प्रोफेशनल के बाद आते हैं, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट की बात कर लेते हैं। यहाँ पे स्पॉटिफाई है, राइट, म्यूजिक है इन द एप्स।
So some of the persons are more interested in generics. तो आपको कौन सा इंटरेस्ट है तो वो सारे ढूंढना ये सब करने में प्रॉब्लम हो जाएगा. You can just connect those whatever apps, Spotify, Apple Music, these are entertainment apps. Booking.com में आपका ट्रैवल का बुक कर सकते हो. Photoshop, TripAdvisor and Booking.com are and Expedia also for the travel. And Airtable is equal to our Excel. Airtable Excel जैसा काम करता है. Google Sheet and Airtable are nearly same. Canva and Photoshop are what are the images you people are doing, or and Canva can be designed for the website also, lovable also for the websites, and Figma is again for the diagrams and slides. So Replit is again a totally next level software application which we can do some applications in the high level. बड़ा application बनाने के लिए Replit use करते हैं. ठीक है, इतना ही नहीं है, और भी बहुत सारे. Just explore those things. Don't limit yourself. एक ही है, don't ever stop yourself on only on the work. So आप लोग अगर सीखेंगे वही काम में काम आएगा. So dedicate yourself 2 to 3 hours in a week. ठीक है, to enhance your skills. आपका स्किल्स बढ़ाने के लिए 2 से 3 घंटा आप लोग यूज कीजिए. ऐसा नहीं है कोई मैं छोटा हूँ बड़ा हूँ. Till now I also use near about 10 to 12 hours to enhance my skills every week. समझ गया? तो स्किल्स बढ़ेगा तभी जाके आगे बढ़ेंगे. आप लोगों का स्किल्स बढ़ेगा मतलब यू आर द ओन रिसोर्सेज फॉर द कंपनी, राइट? तो कंपनी का फीचर्स बढ़ेगा, कंपनी का एनहांसमेंट होगा, राइट? श्योर, गो अहेड. तो इन दिस केस मैंने यहाँ पे एक ऐसे ही स्प्रेडशीट या एक्सेल फाइल बोल सकते हैं मैंने अटैच किया था, और उस पे कहा था कि कैनवा क्रिएट डैशबोर्ड्स फॉर अबव अटैच फाइल फॉर एनालाइज ट्रेंड्स वगैरह कुछ चीजें थी. तो वो किस फॉर्मेट में चाहिए या कैसे चाहिए. तो आई हैव सेलेक्टेड कैनवा ऑप्शन. जैसे कि हम अगर यहाँ पे प्लस में जाएंगे तो हम मोर में यहाँ पे जो एप्स हमने कनेक्ट किए, लवेबल इज आल्सो फॉर वेबसाइट. तो एवरीवन इज अवेयर ऑफ दैट. तो अगर हमको वेबसाइट क्रिएशन चाहिए तो वी विल सेलेक्ट लवेबल. तो उसके रिगार्डिंग में वो हमको वेबसाइट क्रिएट करके प्रोवाइड करेगा. तो कैनवा में मैंने सेलेक्ट कर दिया, उसने कुछ 4 फॉर्मेट्स दिए हैं. तो चारों में से जो भी मुझे सही लगता है कि इस टेम्पलेट में होना चाहिए वो चीजें, तो इंफॉर्मेशन तो मैं चैट जीपीटी से ले लूंगा, बट ये अगर इस फॉर्मेट में चाहिए तो आई विल सेलेक्ट दिस फॉर्मेट. तो उन्होंने यहाँ पे लिंक भी दिए कि चारों जो है ऑप्शंस, चारों को हम अगर क्लिक करेंगे तो हम डायरेक्ट कैनवा में जाएंगे, क्योंकि दिस बोथ थिंग्स आर कनेक्टेड. तो ये कनेक्टेड तो मैं जाके डायरेक्ट एडिट भी कर सकता हूँ वहां पे. तो इट सेव्स टाइम. कैनवा में अलग से, जीपीटी में अलग से करने से अच्छा है कि इंटीग्रेट करके दोनों को हम लोग एडिट भी कर सकते हैं, और आउटकम भी जितना फास्ट मिलेगा तो हमारा उससे टाइम भी बच सकता है. Oh, this next feature is thinking mode. Thinking mode is a simple feature but quite effective. तो जो हम प्लस ऑप्शन था वहां पे थिंकिंग ऑप्शन भी आता है. तो हम थिंकिंग पे क्लिक करेंगे तो जो हमने प्रॉम्प्ट दिया है तो उस पे वो जनरलाइज आंसर देने से अच्छा थोड़ा है 20-25-30 सेकंड तक वो थिंक करेगा, और जो भी उसके पास ऑप्शंस रहेंगे तो वो ऑप्शन वो हमको प्रोवाइड करेगा. तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फीचर है. हम जनरली क्या करते हैं, टाइप करके हम एंटर कर देते हैं. So instead of that, we can select the thinking feature and then add to it. So next is web search. As the name itself suggests कि हम लोग टाइप करेंगे और अगर वेब सर्च में उसमें सेलेक्ट करूंगा तो वो वेब पे जो भी चीजें उसकी रिगार्डिंग है तो वो मैन्युअली तो बहुत टाइम लगेगा, राइट? कि इतने सारे ऑप्शंस है. तो वो वेब में से हर चीज एक्सट्रैक्ट करेगा और एक जगह पे लाके वो प्रोवाइड करेगा. एंड उसी के आगे वो जो उसके जो सोर्सेस होते हैं साइटेशंस के फॉर्म में कि ये सोर्स से मैंने एक्सट्रैक्ट किया है, वो भी सोर्स में वो दिखा देता है. So recently, just before coming to the session, my son and my wife have some leaky gut issues. So उसके बारे में मैं पढ़ रहा था. तो ऑनलाइन में गया था. If I go one-on-one link, it takes so much of time. तो ये कुछ भी प्रॉब्लम आता है, उसका क्या प्रॉब्लम है, फाइनली रूट कॉज आया था जो खाना खाते वक्त वो अगर डाइजेस्ट नहीं हुआ, इट क्रिएट्स ए प्रॉब्लम इन द गट.
which again indigestion, जैसा अभी मेरा बर्थडे का टाइम में बिरयानी पूरा राइट, तो पता नहीं कितना लोगों को परेशानी हो गया, बट न्यूक्लिएशन मस्जिद आर हाईली अफेक्टेड, राइट। तो वो अच्छा हीरा आल्सो। सो व्हाट हैपेंस हियर इज व्हाई दिस हैपन, रूट कॉज करने के लिए अगर रूट कॉज हमें पता चलता है, अब उस रूट कॉज का अगर इलाज हमने किया है तो बहुत सारे चीज इश्यूज क्लियर हो जाएंगे। तो उस रूट कॉज के लिए वेब सर्च विल बी मोर इफेक्टिव फॉर अस। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन रहता है वेब सर्च का, तो वी कैन सेलेक्ट इट एंड देन प्रोसीड फर्दर फॉर। Oh, next is Canvas. So we have attached a use case regarding the SOP कि एडमिन में अगर कोई विजिटर वगैरह आ रहा है तो उसके रिगार्डिंग में क्या क्या SOP होनी चाहिए, या हम लोग कब मैन्युअली करने जाएंगे अगर वर्ड वगैरह में, तो इट विल टेक टाइम। तो हमने क्या किया है, बस कैनवास सेलेक्ट करके तो यहाँ पे प्रॉम्प्ट देके आई सेलेक्टेड कैनवास ऑप्शन, तो यहाँ पे दिया है उन्होंने कैनवास ऑप्शन। तो उसके बाद में जो एसओपी ये फॉर्मेट में आई, जनरली हम देखते हैं कि टेक्स्ट में आई, तो वो हम कॉपी पेस्ट करेंगे कहीं और पे, फिर ये हो जाएगा। तो दे हैव गिवन ऑप्शन हियर कॉपी, एडिट एंड डाउनलोड। तो वी कैन डाउनलोड इट, उसको प्रिंट भी कर सकते हैं और डायरेक्टली इसमें इंफॉर्मेशन फिल भी कर सकते हैं और उसको एडिट भी कर सकते हैं इफ वी वांट इट। ये इतने ही साइज में उन्होंने दिया है, जनरली होल पेज पे बस टेक्स्ट आता है। तो दे हैव गिवन दिस इन द कैनवास फॉर्मेट कि एसओपी इस तरीके से होनी चाहिए, इसमें चेकलिस्ट वगैरह भी आ गए। तो व्हाट इज द नेम ऑफ कैनवास, द मीनिंग ऑफ कैनवास इज, कैनवास बोले तो अपने पावर बीआई देखा है, प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट देखा होगा, पावर पॉइंट में आपका, और मोबाइल में भी, मोबाइल में पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, राइट। हम लोग प्रिंट आउट भी निकालते वक्त वर्ड में आपने देखा होगा पोर्ट्रेट लैंडस्केप, पोर्ट्रेट बोले तो मोबाइल स्ट्रेटली पकड़ेंगे तो पोर्ट्रेट हो गया, अगर वही मोबाइल को हॉरिजॉन्टल किया तो लैंडस्केप हो गया। तो कैनवास में क्या होता है, आपका कितना एरिया कवर करना है उतना एरिया का हम लोग डिजाइन दे सकते हैं। तो जितना एरिया में आप लोग काम करना चाहते हैं उसको कैनवास बोला जाता है, समझ गया। लाइक इन दिस केस इफ यू सी वॉट एवर द कैनवास हैज बीन गिवन एज पर आवर वर्ड फाइल में भी होता है ना, लेटर फॉर्मेट में सेम ऐसे ही दिया है। तो नॉर्मल चैट जीपीटी में ऐसा नहीं होता है, सीधा टक 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 करके डाटा आ जाता है, टेक्स्ट आ जाता है। लेकिन कैनवास बेनिफिट क्या है, वर्ड फाइल में जैसे दिखता है, अभी को दोबारा अंदर जाके जस्टिफिकेशन करो, ये करो, एडजस्ट करो, वो सब जरूरत नहीं है, सीधा इसको डाउनलोड कर दिया, मतलब डॉक्यूमेंट रेडी, यहीं पे एडिट कर लो स्ट्रेट अवे, समझ गया। Oh yes, we have finished with the most So of the what are the main features visible on the ChatGPT? We had gone through 8 features. So उसका भी ChatGPT का वीडियो दिखाना चाहते हो? Yes sir. Well, let's take a All the glimpse through features. the video, right? आपका आवाज 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 आप उसमें ऑन करो, नहीं आ रहा। How you have to open and show them. सो ठीक है, आपको उसमें दिखा देना, ठीक है, आगे आपका स्क्रीन शेयर उनका है, स्क्रीन शेयर। स्क्रीन शेयर तो मेरा है। हाँ, you can show from yours, आवाज नहीं आ रहा है, वहाँ से दिखा दो and you can just carry on. Okay. So finally, video will Pooja will be showing that video for you guys. Some technical problem, उनका उसमें से डायरेक्ट दिखाएगी। So आप लोगों के लिए एक टास्क है जस्ट एक्सपीरियंस के लिए, तो हम लोग जो बताया गया है, एक्सप्लोर द टास्क, फाउंडेशन, रिसर्च, क्रिएटिव, बिल्डर एंड शोकेस। तो ये जो टास्क है आप लोग कीजिए आपकी तरफ से। ये टास्क करते हुए कुछ भी चैलेंजेस है, वल्लभ इज अवेलेबल, पूजा इज अवेलेबल,
to clarify what are the requirements for you guys. ठीक है? So it's not that much heavy task, very simple, hardly it takes half an hour. So ये task इसलिए हम लोग बोलते हैं कि you guys has to complete this task, then you will come to know what are the learnings we had over here. समझिए, नहीं तो फिर अगेन लर्निंग इधर ही रह जाएगा, फिर घर में जाएंगे बाद में करेंगे, सोचते सोचते एक हफ्ता खत्म हो जाता है, फिर बाद में ब्रेन में दूसरा डेटा आके बढ़ जाता है, फिर ये वाइप हो जाता है धीरे धीरे रस पकड़ के. समझ गया? इसलिए complete your task within 3 days or 1 week mostly, so that you guys will have that experience. ठीक है? Yes, sir. This completes your ChatGPT session. Yes, sir. Done. Very good. Thank you. So, everybody. Thank you. This अभी वल्लभ ने कर दिया है. Now let's go with पूजा. पहले ChatGPT का वीडियो दिखा दो उस पर, फिर I'll just कर दिया start. आप कर लो शेयर करके काम करना. इनका प्रेजेंटेशन बनाना पड़ेगा. हाँ The presentation इसने शेयर किया था ना आपको. Come down. Last slide. Yes. Slide sheet. Go to slide sheet. Users treat artificial intelligence as a single text box for isolated questions. But managing a facility requires more than a simple chat. Most users treat तो यहाँ पे आप अगर देखेंगे क्या बोल रहे हैं, what the video is saying, सब लोग हम लोग जो है ChatGPT है कोई भी AI टूल देखते तो सीधा एक बार दिखता है, तो वही ऐसा नहीं है. We have so many things we can do what it's saying. Let us see. Users treat artificial intelligence as a single text box for isolated questions. But managing a facility requires more than a simple chat interface. It requires a sequence of specialized features working in tandem. Take an underperforming integrated facility management operation. The team is struggling with missing safety protocols, inconsistent data tracking, and escalating client complaints. We are going to address these operational failures using a structured 8-tool sequence. Before running any analysis, we have to resolve context management. Without a defined boundary and access to historical data, an AI model will apply generic rules that may not fit the specific safety requirements of your site. To solve this, we deploy Feature 1, Project. This creates a persistent site memory by housing your standard operating procedures, past incident reports, and Kappa formats in one secure location. तो बताए ना what it has clearly explained us. So कोई भी हो प्रोजेक्ट्स में क्या बेनिफिट होगा वो बता रहा है. तो प्रोजेक्ट में हम लोग अगर नॉर्मल ChatGPT में डाल देंगे तो इट विल गो आउटसाइड एंड ब्रिंग आउट व्हाट आर द इंफॉर्मेशन ऑन द वेब. तो अगर वही प्रोजेक्ट में करेंगे लाइक नोटबुक एलएम जैसा, वही प्रोजेक्ट का जो डाटा दिया है उसी डाटा को यूज करेंगे. मतलब ChatGPT को हम लोग नोटबुक एलएम की तरह भी यूज कर सकते हैं. समझा? दैट फीचर इज प्रोजेक्ट्स. The prompt on the right shows how the AI uses this specific folder to manage all health and safety audits. Establishing this foundation ensures the AI draws only from your facility's actual data. Without it, subsequent troubleshooting lacks the consistency needed for complex operations. With the context established, we can face the immediate crisis, a sudden spike in repeated housekeeping complaints at a corporate office site. We need to identify the variables causing the failure. Instead of a standard text response, we activate Feature 6, Thinking. This prompt instructs the AI to evaluate manpower, tools, and supervision to deliver a structured gap analysis and a timeline-based action plan.
Abstract analysis must be. So for example, for the HR, I will say in HR, if you want to do the attrition analysis, okay? So absenteeism, which site is having high absenteeism? Absenteeism कौन करते हैं? कौन करते हैं? Operations करते हैं, right? अभी ज्यादा साइट में absenteeism है, उस साइट का आप लोग हाईलाइट करेंगे MRM में. So you are doing your job. So operations will take their job, right? तो वो सब करने के लिए थिंकिंग में जाके पूरा डेटा दिया मैंडेज का. जनरली क्या है, कोई भी पर्सन 26 मैंडेज करना चाहिए. अगर उस साइट में 50 बंदे का हमारा कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, लेकिन वहां पे 60 लोग हैं, 60 में से सब लोग आने के बाद भी मैंडेज कितना होना चाहिए? 15 to 26 होना चाहिए. लेकिन 60 रहने के बाद भी हमारा इतना नहीं भरा, 20% कम है. तो ऐसा हम लोग अगर पूरा साइट का, सारे साइट्स का डेटा इतना होना चाहिए करके, और आपने पेएबल डेज कितना दिया है करके आपने डालने से व्हाट इट विल गिव एनालिसिस, वी कैन ब्रिंग आउट द थिंकिंग इज which site is doing more absenteeism. You can trigger to that site saying that operations, please be wise to handle the supervisor, to handle the team. समझ गया? So इसमें benefit क्या होगा? For the last year, if we see, we lost near about 18% of our revenue. जो टारगेट था हमारा अचीव नहीं कर पाया. तो अचीव करने के लिए हमारे पास था बिजनेस, लेकिन मैन पावर नहीं होने की वजह से, मैन पावर एब्सेंटिज्म की वजह से हम लोग इतना नहीं कर पाए. तो मैन पावर में दो है, एक एट्रिशन है, एक एब्सेंटिज्म है. तो एब्सेंटिज्म कैन बी कंट्रोल्ड बाय गिविंग सम काइंड ऑफ फीचर्स, बेनिफिट्स टू द एम्प्लॉइज, राइट? एट्रिशन कैन बी कंट्रोल्ड बाय पंपिंग मोर एम्प्लॉइज बाय डूइंग द रिक्रूटमेंट. तो वो चीज जो है आप लोग इधर बैठ के कर सकते हो. साइट में वो करना ये सब नहीं हो पाता है, बिकॉज सम ऑफ द साइट्स वी आर नॉट हैविंग साइट मैनेजर्स, राइट? या Actually, Ishwar sir, the person is waiting at the reception to discuss regarding the PF. So for the HR team you're saying? Exactly. Sure. Yeah, let's see. Quantitative tracking. We transition to feature 5, apps, uploading raw Excel attendance sheets into specialized modules. The tool processes this data to generate a live service management dashboard. It visualizes site-wise attendance, pending complaints, and preventive maintenance schedules. Linking reasoning algorithms with these dashboard applications moves the operation from reactive firefighting to a data-driven system. Our next step is upgrading the infrastructure. The gap analysis showed we need to replace underperforming HVAC vendors and implement new automation technologies to improve energy efficiency. We use Feature 7, Web Search, to gather real-time data. This prompt instructs the AI to compare live vendor features and pull current pricing trends for India, specifically requiring sources and links for every claim. For stakeholder-level strategy, we deploy Feature 4, Deep Research. This use case demands an investigation into industry benchmarks and ROI impact, synthesizing data across multiple toolsets to provide long-term recommendations. To enforce new standards on the ground, we use Feature 3, Images. This prompt generates professional hygiene posters for the canteen, visualizing exact hand-washing steps and PPE requirements for the kitchen staff. For field tracking, we deploy Feature 2, Codex. We use this prompt to build a functional QR attendance web app that includes GPS verification and automated alerts for supervisors. We have established context, analyzed the data, researched vendors, and deployed field tools. Which final feature is needed to assemble these results into an integrated standard operating procedure? Deploying these features in sequence shifts the workload from manual data entry to automated oversight. The final tool for consolidating this operational overhaul is Feature 8, Canvas. Canvas provides a side-by-side workspace to edit and standardize documents in real time. This prompt shows how to build an admin SOP for visitor management, detailing process flows and checklists in an editable format. Measuring global business outcomes shows how each of the 8 tools correlates to an implementation step and measurable benefit. For team leaders, this matrix connects AI directly to cost optimization. Automated analysis eliminates hours of manual tracking. Productivity is scaled when these 8 features are layered into a single integrated stack to manage an operational workflow. Right, this is the video which whatever Vallabh had said, it has been managed in 4 minutes.
So this done with the topic one, what we are discussing is ChatGPT features, what we have on the ChatGPT UI, user interface. Now let's go to any queries upon this, or else let's go to the Claude Basic. Okay? Sure. ठीक है, go ahead. मला टेन्शन आहे ना. So Harsh, is it clear? Harsh, online you are there. हर्ष सुना दे रहे? ठीक है, go ahead. Yes, tell me that is stop recording. Speak to me.